हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस मानसून के हरियाली उत्सव में, आकर्षण के इस मानसून पर्व में आप सभी का एक बार परम क्लासेस चैनल के मंच पर हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी परम क्लासेस चैनल एक न्यू एंड ब्रांड न्यू टॉपिक लेकर आया है, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। दोस्तों, वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नीति आयोग। दोस्तों, हम जानेंगे कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग की विशेषताएं क्या है, नीति आयोग क्या काम करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। दोस्तों, इन सबको हम जानेंगे, लेकिन हम और आप दोनों जब मिलकर जानने की कोशिश करेंगे तभी यह प्रभावी साबित हो पाएगा। दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं नीति आयोग से। ये नीति आयोग क्या है और कब से यह प्रकाश में आया, आज यह चर्चा में क्यों है, ये सब बातें हम जानेंगे। दोस्तों, पहले हम आज जान लेते हैं कि नीति आयोग है क्या और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास के साथ क्या संबंध है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द रोल ऑफ नीति आयोग इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडिया। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नीति आयोग और द National Institution for Transforming India, it means NITI in short term. Friends, Niti Aayog plays a crucial role in promoting sustainable development in the country. Friends, the organization focuses on policy formulation, implementation of sustainable development goals, means SDGs, sustainable development goals in India, and the promoting of innovation and technology driven solutions. This lecture and video explores and communicate the meaning of sustainable development, introduces Niti Aayog and highlights its role in promoting sustainable development in India. Friends, now first of all we will know the all about Niti Aayog. Friends, Niti Aayog is an advisory body established by Government of India in 2015. It replaced by Yojana Aayog. Its primary objective is to foster the sustainable and inclusive development through policy formulation and implementation of sustainable development goals and promotion of innovation and technology driven solutions for development and communication. Friends, now we know the term sustainable development. Friends, sustainable development refers to a comprehensive approach. Sustainable development refers to a comprehensive approach that aims to meet the need of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Friends, it involves balancing economic growth,
social inclusion, and environmental protection to create a harmonious and resilient society. Friends, now we know the objectives of Niti Aayog. What are the objectives? What are the main aims of Niti Aayog in country? Friends, first of all, to evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states. Friends, the Niti Aayog practices and tries to take helps of states in sustainable development in country. Friends, second objective is to foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanism with the states on a continuous basis, recognition that strong states make a strong nation. Friends, Niti Aayog is working for the solid and perfect development in India, so that we want to take support of states, strong support of states that can promote the development in country. Friends, next is to develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher level of government. Friends, Niti Aayog wants to involve the three-tier system for the village development, state development, and at last country development. So, next objective is to ensure on areas that are specifically or especially referred to it, that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy. Its next objective is to done and complete the old work or liabilities which are handed over to Niti Aayog, so that the economic strategy and policy may be formulated and generated in right way and right direction. Friends, next is to pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress. Friends, its next objective is to work for such a section of society that is far from the benefits of economic progress in India. And next is to design strategic and long-term policy and program frameworks and initiatives and monitor their progress and their efficacy. Friends, the video learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary corrections. Next is
to provide advice and encourage partnerships between key stakeholders and national and international like-minded think tanks as well as educational and policy research institutions. Next is to create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative, communicative and community of national and international experts, practitioners and other partners, so that the development and the sustainable development may be progressive in the country. Next is to offer a platform for the resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda. Friends, next objective is to maintain a state-of-the-art resource center, be a repository of research on good governance and best practices in sustainable and educable and equitable development, as well as help their dissemination to stakeholders, to actively monitor and evaluate the implementation of programs and initiatives. Friends, including the identification of the needed resource so as to strengthen the probability of success and scope of delivery, the progress, to focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programs and initiatives is the other objective of Niti Aayog. Friends, to undertake and understand other activities as may be necessary in order to further the execution of the national development agenda and the objectives mentioned in Niti Aayog's slide. Friends, these are the main objectives of Niti Aayog formulation. Now, we know the SDGs, Sustainable Development Goals, formulation of Sustainable Development Goals. Friends, Niti Aayog has been instrumental in formulating the National Sustainable Development Goals, SDGs, in alignment with the global agenda set by the United Nations. These goals encompass several key areas such as poverty eradication, gender equality, clean energy, sustainable cities, and climate action. By setting ambitious targets and promoting a holistic approach, Niti Aayog encourages all stakeholders to work towards achieving these goals, ensuring sustainable development at both the national and international levels. Friends, now we will know the policy formulation for SDGs. Friends, Niti Aayog serves as a crucial platform for policy formulation and implementation in various sectors. It actively engages with central ministers, state governments and relevant stakeholders to develop comprehensive policies that integrate sustainability principles
This includes sectors like renewable energy, agriculture, urban planning, transportation, and water resource management. By facilitating evidence-based decision making, Niti Aayog plays a crucial role in promoting sustainable practices across diverse sections or sectors. Friends, encouraging innovation and entrepreneurship is the main role of Niti Aayog. Friends, Niti Aayog recognization the importance of innovation and entrepreneurship in driving sustainable development. It supports and promotes initiatives that foster technological advancements, green innovation, and social entrepreneurship. Through programs like Atal Innovation Mission and Atal Incubation Centers, Niti Aayog provides a conducive ecosystem for startups and innovators working towards sustainable solutions. Friends, by nurturing these endeavors, Niti Aayog contributes to the creation of a sustainable and inclusive economy. Friends, its next role is promoting sustainable urbanization. Friends, given the rapid urbanization in India, Niti Aayog focuses on promoting sustainable urban development. It supports the development of smart cities, emphasizing efficient resource utilization, clean energy adaptation, and inclusive infrastructure. First, Niti Aayog encourages the adoption of sustainable urban practices such as waste management, water conservation, and green building techniques. By promoting sustainable urbanization, Niti Aayog aims to create livable cities that prioritize environmental sustainability and enhance the quality of life for citizens. Friends, next role or importance is enhancing climate action, recognizing the urgent need to address climate change. Niti Aayog actively promotes climate action through various initiatives. It works towards mainstreaming climate resilience into policies and programs across sectors. Niti Aayog plays a vital role in developing climate adaptation strategies, facilitating renewable energy adoption, and promoting sustainable agriculture practices by coordinating efforts at the national and subnational levels. Friends, Niti Aayog strengthens India's commitment to the Paris Agreement and contribution to global climate action. Friends, at the conclusion, we can say that Niti Aayog's role in promoting sustainable development is India is instrumental through policy formulation, SDG implementation, stakeholder engagement, and innovation promotion. Niti Aayog drives efforts toward a sustainable and inclusive future by working towards economic growth, social inclusion, and environmental protection. Niti Aayog contributes significantly to India's
sustainable development journey. Friends, improving the quality of life for its citizens and ensuring a better future for generation to come. Friends, we knew about the Niti Aayog and sustainable development through English. Now we will know the same things in Hindi also. दोस्तों, हमने अभी जो जाना मैटर के बारे में, जो समझा, वो इंग्लिश में भी जाना, अब हम हिंदी में जाने। दोस्तों, राष्ट्रीय योजना आयोग की जगह है एक नए आयोग की स्थापना की जरूरत हुई, महसूस हुई। और दोस्तों, उस पर कई सवालात भी उठे जा रहे थे। तो हुआ क्या दोस्तों, 2015 में यह जगह नीति आयोग ने ले ली। दोस्तों, नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। दोस्तों, यदि हम इसके फॉर्मुलेशन पर नजर डालें तो संक्षिप्त में हम ये कहेंगे कि 65 साल पुरानी विरासत जो योजना आयोग की है, उसकी जगह नीति आयोग ने ली। क्यों ली, इसका मेन वजह यह है क्योंकि योजना आयोग की उपयोगिता और महत्व पर लंबे समय से सवालात उठ रहे थे। देश की मौजूदा आर्थिक जरूरतों और परिदृश्य के हिसाब से यह बदलाव ज्यादा प्रासंगिक और जवाबदेह था। दोस्तों, नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की विकास प्रक्रिया और सतत विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका का निर्वहन करने के लिए बाध्य है। इसलिए नीति आयोग के बारे में विस्तार से समझना, जानना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उसके संबंध को जानना हर किसी के लिए जरूरी है। और यह जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में पहली बार परम क्लासेस चैनल आपके सामने लेकर आया है। दोस्तों, इसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध हो गया, कम्युनिकेट होंगे आप इस जानकारी से। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों, जैसा कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, वैसे ही नीति आयोग के अध्यक्ष भी देश के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर श्री सुमन बेरी 1 मई 2022 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष पद पर आसीन है। दोस्तों, अभी जो नवीनतम जानकारी है तो वो हम जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, श्री परमेश्वरन अय्यर 10 जुलाई 2022 को नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं ताकि उनके अनुभवों का लाभ देश को मिल सके। दोस्तों, डॉक्टर अरविंद विरमानी 16 जुलाई 2022 से पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नीति आयोग में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद नीति, यह नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल का हालिया एजेंडा है। क्या है? एक जिला एक उत्पाद नीति, यह नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का एजेंडा है। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके अलावा नीति आयोग भारत की अर्थव्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के चुनिंदा निर्णयों और फैसलों पर अध्ययन भी करवाएगा ताकि उसका फायदा देश में हो रहे सतत विकास को मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना पर कार्य चल रहा है और इसके लिए नीति आयोग एक जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, नीति आयोग ने निर्णायक भूमिका स्वामित्व पर एक आदर्श अधिनियम भी तैयार किया है। दोस्तों, जिसके बारे में उम्मीद है कि इसे राज्यों द्वारा अपनाया और लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को ऋण की आसान पहुंच प्रदान करना और भूमि से संबंधित मुकदमों की बड़ी संख्या को कम करना है। साथ ही
पारदर्शी रियल एस्टेट लेन देन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को सक्षम और सरल बनाना है। दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा है कि सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और अधिक क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना शुरू करेगी। PLI योजना का उद्देश्य इस देश में निवेशकों को पैमाने और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तुलनीय क्षमता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, नीति आयोग का मेन उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक जो वातावरण है उसका सामना करें और उसमें विजयश्री हासिल करें। और भारत सरकार पहले ही दवा, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों के लिए PLI योजना शुरू कर चुकी है, ताकि उस देश में इतने सालों तक विकास का जो पहिया अवरुद्ध हो चुका था उसे पुनः गति मिल सके। अब यह योजना अन्य क्षेत्रों में भी लागू की जा रही है। दोस्तों, अब हम जानते हैं नीति आयोग का विकास कैसे हुआ, नीति आयोग का गठन कैसे हुआ, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। संस्कृत में नीति शब्द का अर्थ होता है नैतिकता, व्यवहार, मार्गदर्शन आदि। नैतिकता, नीति का मतलब क्या होता है? व्यवहारिकता और नैतिकता और उसका मार्गदर्शन करना। लेकिन वर्तमान संदर्भ में इसका अर्थ नीति, और नीति का अर्थ है भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान जो नीतिगत और व्यवहारिक निर्णय लेकर विकास की दिशा में देश को आगे ले जाएगा। दोस्तों, यह देश की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है जिससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सतत विकास को अग्रसर करने में उम्मीद जागी है। इसका उद्देश्य एक मजबूत राज्य का निर्माण करना है जो गतिशील और मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, इससे भारत को दुनिया में एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पुनः अपना वर्चस्व स्थापित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, नीति आयोग के निर्माण में टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार हब नामक 2 केंद्र हैं। कौन से? टीम इंडिया हब और ज्ञान नवाचार हब। तो दोस्तों, जान लेते हैं दोनों हब क्या है, नीति आयोग को इन 2 हब को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जान लेते हैं। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, आयोग ने वर्ष 2023-24 में अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक इंडिया इंडेक्स जारी किया है, जो भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सतत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। दोस्तों, SDG, पहले तो ये जान लेते हैं SDG इंडिया इंडेक्स है क्या। दोस्तों, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है, एक टूल है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत की प्रगति को मापने और वो किस दिशा में हो रही है उसे ट्रैक करने का एक मापक है। दोस्तों, सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का समर्थन करता है तथा राज्यों को इन लक्ष्यों को अपनी विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, यह नीति निर्माताओं के लिए अंतराल की पहचान करने तथा वर्ष 2030 तक सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है और करता रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा हम जान लेते हैं कि 2 जो केंद्र हैं, टीम इंडिया हब और ज्ञान एवं नवाचार हब या केंद्र। दोस्तों, टीम इंडिया क्या है? टीम इंडिया में इससे केंद्र सरकार के साथ भारतीय राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है कि दोनों मिलकर, दोनों हाथ में हाथ मिलाकर सहकारिता की भावना के साथ देश में सतत विकास का जो प्रण है उसे पूरा करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा ज्ञान व नवाचार केंद्र क्या है?
या संस्थान की थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है। दोस्तों ये जो ग्रुप है, यह केंद्र है, उसमें बड़े बड़े थिंकर्स उनके और बड़े बड़े विचारक शामिल होंगे, जिनके विचारों को और सोच का उपयोग कर थिंक टैंक की क्षमताओं का निर्माण होगा और देश के सतत विकास में उसका उपयोग किया जाएगा। दोस्तों नीति आयोग खुद को अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जिसमें आवश्यक संसाधन, ज्ञान और कौशल है, जो से गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को आगे गतिमान करने, सरकार को महत्वपूर्ण नीतिगत दृष्टि प्रदान करने और अप्रत्याशित मुद्दों का प्रबंध करने में सक्षम बनाएंगे। दोस्तों नीति आयोग हर रोज नए टेक्नोलॉजिकल, नए तकनीकी अनुसंधान और विकास में लगा रहता है और एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में खुद को विकसित कर रहा है। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना का कारण यह है कि लोगों को उनकी भागीदारी के माध्यम से प्रशासन में वृद्धि और विकास की उम्मीद थी। इसके लिए प्रशासन में संस्थागत परिवर्तन और सक्रिय रणनीति बदलावों की आवश्यकता थी, जो बड़े पैमाने पर बदलाव को बढ़ावा दे सके और उसके जो सतत विकास की जो एक दिवा स्वप्न की बात है, उसे यथार्थ के धरातल पर ला सके। तो दोस्तों इसके लिए कुछ उद्देश्य नीति आयोग के सेट किए गए। तो हम जानते हैं वो कौन से जो है उद्देश्य है नीति आयोग के। हमने इंग्लिश में तो जान लिए, अब हम हिंदी में भी जान लेते हैं। दोस्तों पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में प्रकाश में राज्यों की सक्रिय भागीदारी तथा राष्ट्रीय एजेंडा की रूपरेखा प्रदान करना, ताकि सतत विकास का जो एजेंडा है उससे जल्दी ही प्राप्त किया जा सके। दूसरा है राज्यों के साथ निर्बाध आधार पर सुव्यवस्थित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। दोस्तों राज्य और केंद्र एक ही है, राज्यों से मिलकर ही तो केंद्र बनता है। इस बात की पुष्टि करने और दोनों के मध्य सामंजस्य बिठाते हुए सहकारिता की भावना और संघवाद को बढ़ावा देते हुए देश में सतत विकास की जो एक लहर है उसे आगे की ओर ले जाने का कार्य इसका उद्देश्य है। दोस्तों अगला है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय रणनीति तैयार करने के लिए तरीकों का निर्माण तथा उन्हें धीरे धीरे सरकार उच्च स्तर पर एकीकृत करना है। दोस्तों लोक प्रशासन का मतलब ये है कि 3 टायर सिस्टम भारत में लागू है, त्रिस्तरीय, ग्रामीण, जिला एंड केंद्र। तो दोस्तों तीनों स्तर पर, नीचे स्तर पर जब ग्रामों का विकास होगा या हम ये कहें ग्रास रूट से जब सतत विकास की बुनियाद रखी जाएगी तो केंद्र का सहयोग उसमें स्वतः मिलेगा। दोस्तों एकला चलो अच्छे काम के लिए सब आपसे जुड़ते जाएंगे, कठिनाइयां आएगी लेकिन जो विकास का लक्ष्य है वह आपको हासिल होगा। और ये तब होगा जब आपके अंदर जज्बा हो, जब आप में कार्य करने की क्षमता होगी, जब आत्मबल और आत्मविश्वास होगा। दोस्तों एक आर्थिक नीति जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु को शामिल किया गया हो, ऐसी नीति बनाना भी नीति आयोग का उद्देश्य है। दोस्तों इसके अलावा समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिनके आर्थिक प्रगति में संतोषजनक लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, समाज में आर्थिक लाभ अब तक नीति आयोग की स्थापना से पहले तक उसी वर्ग को मिल रहा था जो पहले से सक्षम है। दोस्तों यह जो आर्थिक लाभ था और जो सुविधाएं थी वो वंचित वर्ग, समाज का जो वंचित वर्ग है उस तक पहुंचा ही नहीं और न उनका योगदान देश के आर्थिक विकास में रहा, तो सतत विकास कहां से होगा। तो यह सुनिश्चित करना कि उन वांछित वर्ग या वंचित वर्ग जो है उनका भी योगदान इसमें हो और उन्हें सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। दोस्तों इसके अलावा रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा तथा पहल का प्रस्ताव करना तथा उनकी प्रगति एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, समय समय पर सतत विकास के लिए
रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां बनाकर उस पर प्रस्ताव देना और समय समय पर उसकी प्रगति और प्रभावशीलता का SDGs के अंतर्गत मूल्यांकन करना और समीक्षा करना। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स और नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स जो हैं उनके साथ साथ शिक्षा और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को पनपाना और प्रोत्साहित करना, ताकि देश में अनुसंधान और विकास का वातावरण बन सके और हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सक्षम और सशक्त बन सके। दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों आदि के साझा समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली उत्पन्न करना। दोस्तों, जितने ज्यादा विशेषज्ञ जुड़ेंगे विषयों के, उतना ही ज्यादा ज्ञान और नवाचार फैलेगा और उस ज्ञान और नवाचार की रोशनी में एक सक्षम उद्यमशीलता और सक्षम सतत विकास की राहें खुलेगी। दोस्तों, प्रगतिशील एजेंडा को तेजी से पूरा करने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना भी नीति आयोग की स्थापना का मूल उद्देश्य रहा है। उनका यह वजह है कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान कर जो विकास की नीति है उसे हम प्रोत्साहित करें, एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को संरक्षित करना, सुशासन और सतत एवं समतामूलक विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का भंडार बनना तथा प्रतिभागियों तक उनके वितरण में सहायता करना। दोस्तों, होता क्या है, सुशासन और सतत विकास दो चीजें ऐसी है जो कि आम जन तक यदि पहुंचा दिया गया तो सतत विकास जो है वो स्वतः आगे बढ़ेगा, क्योंकि आम जन की भागीदारी उसमें सन्निहित हो जाएगी। और इसके लिए ही नीति आयोग का मूल उद्देश्य रहा है कि वो सुशासन और जो क्षमता विकास के जो कार्यक्रम है उनको आम जन तक पहुंचाए। उसके अलावा कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की प्रभावी जांच और मूल्यांकन करना, जिससे सफलता की संभावना को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना और उसे रेगुलेट करना भी शामिल है। दोस्तों, ये उनके उद्देश्य हैं। इसके अलावा अन्य उद्देश्य भी हैं, जैसे कार्य क्षेत्रों और पहलों के निर्वहन के लिए प्रौद्योगिकी सुधार, क्षमता निर्माण पर ध्यान दें। दोस्तों, यदि हमने नवीन प्रौद्योगिकी को हमने टेक्नोलॉजी को, टेक्निक्स को काम में लिया तो संभवतया नहीं 100% संभव है कि हम जो कार्यक्रम है जो हमने पहल के लिए कदम उठाए हैं वो सक्षम होंगे और सफल होंगे। दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां शुरू करना, ताकि आम जन की भागीदारी, नीति आयोग का मेन उद्देश्य यह है कि राष्ट्र के निर्माण में, सतत विकास में वो आम जन की भागीदारी को साथ लेकर सतत विकास की जो गाड़ी है उसके पहिए को ग्रीसिंग करे, उसे तेजी से अग्रसर करे। दोस्तों, इसके अलावा हम नीति आयोग के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको जान लेते हैं, किन किन क्षेत्रों में ये कार्य कर रहा है। दोस्तों, पहला तो है इनके विभाग कौन से जिनके क्षेत्र से ये कार्य करता है, प्रशासन और सहायता इकाइयां, दूसरा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रकोष्ठ, संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ। दोस्तों, इन्होंने नीति आयोग ने क्या किया, देश की आवश्यकता को समझते हुए अलग अलग प्रकोष्ठ, अलग अलग कार्य क्षेत्र बना दिए, तय कर दिए कि आपका कार्य क्षेत्र ये है। अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, अलग अलग उन्होंने उसके अंदर कई विभाग बना दिए ताकि वो सक्षमता के साथ कार्य कर सके। इसके अलावा डेटा प्रबंधन और विश्लेषण तथा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो कि आगे प्रगतिशील टेक्नोलॉजी है, उसका अलग विभाग, अर्थशास्त्र में वित्त प्रकोष्ठ जो कि सबकी मेन धुरी है। इसके अलावा शिक्षा, शासन और अनुसंधान, गवर्निंग काउंसिल, सचिवालय और समन्वय जो कि उद्योग 1, उद्योग 2 इन दोनों में शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी मतलब परिवहन की जो सुविधाएं हैं
उनको विकसित करना और उन्हें और अधिक जो है प्रभावशील बनाना। इसके अलावा बुनियादी ढांचा, दूसरा बुनियादी ढांचा कौन सा? ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा के बिना सारी नीतियां, सारे कार्यक्रम, सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। दोस्तों देश में ऊर्जा के नवीन प्राकृतिक संसाधन खोजना, उनका सही ढंग से उपयोग करना और देश के विकास में उनकी जो कार्य प्रणाली है उसे सुनिश्चित करना इसका कार्य क्षेत्र में आता है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो कि रुग्ण अवस्था में है, लेकिन उनका जज्बा है कि देश के सतत विकास में अपना योगदान दें, तो उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनकी रुग्ण अवस्था से उन्हें बाहर निकालने के लिए, उनके स्वस्थ वातावरण के लिए एक नई नीति बनाना, नए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना, यह उनका कार्य क्षेत्र है। प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण तथा द्वीप विकास प्रमुख कार्य है। इसके अलावा परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाव, दोस्तों इनका कार्य है एसडीजीएस जो तय किए गए हैं उनका मूल्यांकन और प्रबंधन करना, ताकि कहां पे लेक ऑफ स्टेक है उनका हम ध्यान रखें, उन क्षेत्र में हम ज्यादा प्रगति करें। इसके अलावा सरकारी निजी कंपनी भागीदारी, दोस्तों कई चीजें ऐसी हैं जो हमें निजी कंपनियों के हाथ में भी देनी पड़ी है, ताकि सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर देश के विकास, सतत विकास को नए आयाम प्रदान करके। इसके अलावा ग्रामीण विकास, दोस्तों गांधी जी का मूल मंत्र था ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो गया तो भारत का स्वतः विकास हो गया। तो नीति आयोग की स्थापना भी गांधी जी के मूल मंत्र पर की गई है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और उसी का विकास करना महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण विकास के लिए इनका एक अलग विभाग बना दिया गया है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कब विकास से जुड़ेगा और कब सतत विकास में अपनी भागीदारी तय करेगा, इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है, ताकि अंधविश्वास, पुरानी कुरीतियां, पुरानी रीतियां, पुराने रिवाज से ऊपर उठकर देश के विकास में अपना योगदान समझ सके। दोस्तों इसके अलावा सामाजिक न्याय व अधिकारिता तथा स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ जो कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, करप्शन को दूर कर सके। दोस्तों सामाजिक क्षेत्र जो कि कौशल विकास, श्रम व रोजगार तथा शहरी विकास, इन सब के लिए एक सामाजिक क्षेत्र बनाया गया। दो सामाजिक क्षेत्र बनाए गए हैं। पहला तो कौशल विकास का जो ट्रेनिंग देश के श्रम व रोजगार को मद्देनजर रखते हुए उस क्षेत्र में विकास व कौशल की स्थापना कर सके। इसके अलावा शहरी विकास की ओर भी ध्यान दिया जा सके, क्योंकि लोग हैं वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र 2 प्रभाग है, वो क्या करता है? स्वास्थ्य एवं पोषण तथा महिलाओं व बाल विकास की बात करता है। उनका क्या करना है कि देश में यदि हमें सतत विकास की लहर लानी है, लहर को और अधिक उछाल देना है, तो महिला व बाल विकास तथा उनके स्वास्थ्य की बात और पोषक तत्व उन तक पहुंचाने की जरूरत है। इसके अलावा राज्य वित्त व समन्वय और सतत विकास लक्ष्यों में राष्ट्र की भागीदारी तथा जल व भूमि संसाधन की आपूर्ति तथा आम जन तक उनकी पहुंच को सफल बनाना इसका जो नीति आयोग का मूल कार्य क्षेत्र है। दोस्तों इसके अलावा हम ये जानते हैं कि सतत विकास के लिए जो हमारे देश का जो योगदान है वो क्या है, सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी योगदान क्या है, तो हम जान लेते हैं कि नीति आयोग के साथ, नीति आयोग के जो कार्यक्रम है, जो उनके रोल है, उनको पूरा करने के लिए, उनकी सफलतम परिणति के लिए क्या क्या सरकारी योगदान है, हस्तक्षेप है, वो क्या है। दोस्तों पहला तो है प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। दोस्तों ये कभी भी नीति आयोग की स्थापना से पहले नहीं हुआ। दोस्तों आयोग तो पहले भी था, लेकिन नीति आयोग ने अपने गठन के दिन से ही सरकारी सहायताएं, सरकारी हस्तक्षेप को आमंत्रण देना शुरू कर दिया, ताकि उनके योगदान से देश में सतत विकास की लहर को और अधिक लहराया जा सके। इसके अलावा है स्वच्छ भारत मिशन।
दोस्तों, नीति आयोग के पहल पर भारत में 11 करोड़ शौचालय और 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया। दोस्तों, बड़ी ही सफलता का विषय है, बड़ी प्रशंसा का विषय है। दोस्तों, उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों, माताओं बहनों के उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, इसके अलावा जल जीवन मिशन, घरों में जल के कनेक्शन आए। स्वच्छ जल हर किसी के अधिकार है और उस अधिकार को वो पास के, इसके लिए 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल जल कनेक्शन आए। दोस्तों, ये है बात। इसके अलावा आयुष्मान भारत PMJAY ये योजना है। 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं इसके, 30 करोड़ से अधिक जिनको इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक पहुंच, जो प्राथमिक चिकित्सा देखभाल और सस्ती जेनरिक दवाइयां प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज भी ऐसे केंद्र है जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री उचित दर पर दवाइयों की पहुंच आम जन तक बना रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, वो भी नामात्र की ब्याज दर पर और बड़ी ही सरल प्रक्रिया से। दोस्तों, इसके अलावा सौभाग्य योजना, 100% घरेलू विद्युतीकरण हो चुका है। 100% है ना, आश्चर्य की बात है ना, एक संभावना सतत विकास के देश में। दोस्तों, नवीनीकरणीय ऊर्जा, एक दशक में सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर कितनी हो गई पता है? 73.32 गीगावाट। दोस्तों, कितना उछाल है विकास, नवीनीकरण ऊर्जा अप्रत्याशित है ना। दोस्तों, देश वही है, सरकार का रवैया बदला है। सरकार है वो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जन सेवा का कार्य कर रही है, तब ये कार्य हो रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFS से बना है, जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को कवरेज किया गया है। इसके अलावा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ अर्जित किए गए हैं, लोगों के खाते में दिए गए। स्किल इंडिया मिशन क्या है? दोस्तों, 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित और कौशल उन्नत किया जा रहा है तथा 54 लाख युवाओं को पुनः कौशल प्रदान किया गया है ताकि वे देश के सतत विकास में अपने कौशल का योगदान दे सकें। दोस्तों, इसके अलावा नीति आयोग द्वारा जो हाइपोथेटिक एक प्रभावी शासन के 7 स्तंभ हैं जो कल्पित करे गए हैं, परिकल्पित किए गए हैं, वो कौन से उनको भी जानना आवश्यक है, क्योंकि नीति आयोग पूर्णतया सतत विकास के लिए देश में उत्तरदायी है। और वो कौन से 7 स्तंभ हैं जो कि उसकी हेल्प के लिए तत्पर है। जनहितैषी, यह समाज के साथ साथ व्यक्तियों की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है आकांक्षा। दूसरा, सक्रियता, नागरिकों की आवश्यकताओं की प्रत्याशा और प्रतिक्रिया में यह अपना पूरा योगदान देता है। इसके अलावा भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उनकी जो समस्याओं को दूर कर उनमें भागीदारी का एक बीजारोपण करना। इसके अलावा सशक्तिकरण की जो परिभाषा है उसमें मूलतः महिलाओं को शामिल करना और उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर महिला विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसके अलावा सभी का समावेश, एकमेव होना, सब एक के लिए और एक सबके लिए होना, सहकारिता की भावना विकसित करना, वसुधैव कुटुंब का निर्माण करना, सभी का समावेश मतलब जाति, पंथ, समुदाय, लिंग के बावजूद सभी लोगों का अनेकता में एकता कर देश के विकास में, सतत विकास में सभी के योगदान को सुनिश्चित करना, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना नीति आयोग का प्रमुख स्तंभ है। उनके अलावा समानता,
सभी को, विशेषकर युवाओं को समान अवसर प्रदान करते हुए सभी को समान अवसर के साथ साथ में लेकर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना। इसके अलावा पारदर्शिता, सरकार को दृश्यमान और उत्तरदायी बनाना ताकि सारी चीजें क्लियर दिखाई दे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि देश में कितना विकास हो रहा है, क्या किया जाना बाकी है और क्या किया जाना है, इस स्थिति से रूबरू करवाना। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो इतना सारा कार्य करता है, जो इतना सारा स्तंभ बनाता है, जो इतने सारे जो है दायित्वों पर निर्भर करता है, उसकी संरचना क्या है वो जानना आवश्यक है। दोस्तों जान लेते हैं इसके अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष हैं देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में नरेंद्र जी मोदी हैं। गवर्निंग काउंसिल में, इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले विशेष मुद्दों और संभावनाओं को संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है। इनका गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा। इसे प्रधानमंत्री द्वारा बुलाया जाएगा। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष और उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, प्रासंगिक क्षेत्र ज्ञान वाले विशेषज्ञ जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया, उन्हें आमंत्रित किया जाता है, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो, ताकि सतत विकास की जो मूल धारा है उसकी गति को तीव्र किया जा सके और जो हमें खामियां नजर आती है उनमें उनको विचारों को, उनके अनुभवों का लाभ उठाकर देश के सतत विकास को और उन्मुक्त बनाया जा सके। इसके अलावा पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कई और भी शामिल हैं, जो कि उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो होता है। सदस्य कई तरह के सदस्य होते हैं, जिनमें कि पूर्णकालिक, अंशकालिक सदस्य। और अंशकालिक में कौन है? जो हाई लेवल के यूनिवर्सिटीज हैं, हाई लेवल के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं एंड जो न्यू टेक्नोलॉजी वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें से अधिकतम 2 सदस्य पदेन क्षमता में होंगे। अंशकालिक सदस्य रोटेशन के आधार पर होंगे। इसके अलावा पदेन सदस्य मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चय और निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। वह भारत सरकार के सचिव के पद पर होगा। इसके अलावा आज तक नीति आयोग की उपलब्धियां क्या रही है उन पर एक नजर डालते हैं, ताकि हमें पता लगे कि नीति आयोग जो सतत विकास की बात करता है उसमें वो कहां तक सफल होगा। सफलता क्या सतत विकास को मिलेगी? क्या नीति आयोग अपने उद्देश्य में सफल होगा? क्या नीति आयोग उस उत्तरदायित्व को पूरा करेगा जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है, जिसके लिए उसका गठन किया गया है? तो दोस्तों जान लेते हैं 2022-23 में एक नवीनतम रिपोर्ट आई है। उसमें नीति आयोग की निम्नलिखित पहलुओं और उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है। उसमें पहला है, नीति आयोग के कृषि विभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22 अप्रैल से 25 अप्रैल 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में नवीन कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया, ताकि कृषि के सतत विकास में उनका योगदान मिल सके। इसके अलावा कार्यशालाओं में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योग, किसानों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 1250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और कार्यशाला का YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग भी किया गया। दोस्तों नीति आयोग ने 7 से 28 जनवरी 22 तक 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल फिनटेक शिखर सम्मेलन फिनटेक ओपन आयोजित किया। इसके अलावा फिनटेक ओपन में नियामकों, फिनटेक पेशेवरों, उत्साही लोगों, उद्योग के नेताओं, स्टार्टअप समुदाय और डेवलपर्स को सहयोग और विचारों के आदान प्रदान और नवाचार के लिए एक साथ लाया गया। दोस्तों ये चीजें हैं जो कि
एक नीति आयोग को है वो सक्षम ही नहीं बनाता, उसके एजेंडा को आगे नहीं बढ़ाता, उसके सतत विकास के प्रति जो उद्देश्य है, जो उनकी मानसिक धारणा है, उसको प्रबल बनाता है और देश के विकास में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित भी करता है। इसके अलावा दोस्तों उनका जो एजेंडा है, 3 वर्षीय कार्य एजेंडा है 2017-18, 19-20 की अवधि के लिए नीति आयोग का एक प्रमुख दस्तावेज है दोस्तों। वो ये बताता है कि नीति आयोग सतत विकास के लिए देश में क्या कर रहा है और कहां तक वो सफल हो पाया है। यह दस्तावेज 2017-18 से 2019-20 तक नीतिगत परिवर्तनों और कार्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके लिए कई योजनाएं बनाई जाती है। 3 वर्षीय कार्य एजेंडा अपेक्षाकृत कम अवधि में नीतिगत परिवर्तनों के लिए महत्वाकांक्षी प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों यह है नीति आयोग और सतत विकास। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे कि आप एक युवा है, आप एक देश के सिटीजन है, स्वतंत्र सिटीजन है, आपको सारे अधिकार हैं। दोस्तों उन अधिकारों का सही दिशा में प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए आप नीति आयोग के जो मूल उद्देश्य है, उनका जो मूल उद्देश्य सतत विकास, उससे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और ये तभी होगा जब आप प्रमुख क्लासेस के हर वीडियो को जानेंगे और विकास के हर पहलू को ध्यान से समझेंगे और अपने उत्तरदायित्व को उसके अनुसार ढालेंगे। दोस्तों युवा शक्ति वह शक्ति है जो देश के सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक रामबाण दवा है। तो दोस्तों जरूरत किस चीज की है, जरूरत है तो साथ में हाथ मिलाकर चलने की। तो दोस्तों ऐसे ही कई और टॉपिक लेकर आएगा प्रमुख क्लासेस चैनल। दोस्तों आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप आज के इस वीडियो को सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, जानेंगे कि हमारा योगदान देश के सतत विकास में क्या है। क्या हम नीति आयोग को ही सतत विकास के लिए उत्तरदायी माने, हमारा भी उतना ही उत्तरदायित्व। तो दोस्तों जानिए अपने उत्तरदायित्व को। कल मिलते हैं, कल इसी मंच पर इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।